Good morning, students. Today our topic is volcanoes and volcanic eruption and the landforms uh, which are occurred due to the volcanic eruptions. Now, first of all, as you know, what is volcano? Volcanoes, when suddenly the magma comes out on the surface of the earth, and it is called then lava, and it abruptly erupt, दैट इज़ कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। जब कभी मैग्मा जो है वो अपने चैम्बर से, चैम्बर्स कहाँ है उसका, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो एस्थेनोस्फेयर है वो एक वीक जोन है अर्थ का, जहाँ से मैग्मा को जो है पॉइंट मिलता है और सरफेस पे आने के लिए। तो वहाँ से मैग्मा जो है सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर आता है और उसे हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस जब होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इजेक्टेड एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, लाइक some are solid, some are liquid, and some are in gaseous forms. In the solid form you can see the volcanic bombs, ash, dust. Volcanic bombs, it can be the size of 0 to 33 millimeter. So they have different names according to their diameter, like the block which have 33 millimeter diameter, that is called volcanic bomb. Similarly, 4 to 25 millimeter diameter, which contain, that is called dapple, and the third which have under 4 millimeter, they are called ash or dust. So these are the liquid form of the material which is ejected during the volcanic eruption. Now the liquid is in the water form. Water, while the volcanoes erupt, the 60 to 90% material is in the form of water. So water is very important part of volcanic eruptions. Because of because of this water, when the volcanoes erupt, the water condensed and the precipitation took place in the areas of volcanic eruptions. Now the third form is gaseous form. Different types of gases ejected during the volcanic eruptions, like nitrogen compounds, sulfur compounds, and minor amounts of chlorine, hydrogen, and argon gases. So these are the different gases which eject during the volcanic eruptions. Now because we are not doing all these in the detail, because they are not our main subject matter. So in this chapter we will cover the different landforms of volcanoes, extrusive and intrusive. But you must know the types of volcanoes also. There are three types of volcanoes. Three types of volcanoes are: first is active, second is dormant, and third one is extinct. In short, we will discuss types of volcanoes. First is active, second is dormant, and third one is extinct. Now active volcanoes, which erupt during a fixed interval or during the रेगुलर इंटरवल। जो रेगुलर इंटरवल में वोल्केनोज जो हैं इरप्ट होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं। जैसे कि जो हमारा सिसिली आइलैंड है, वहाँ पर स्ट्रोम्बोली वोल्केनो, दैट इज एन एक्टिव वोल्केनो विच इरप्ट frequently, and it so frequently erupted that it is known as the lighthouse of that area, कि इतनी जल्दी जल्दी उसमें इरप्शंस होता है कि उसे वहाँ का लाइट हाउस तक कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म इज डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनोज आर दोज वोल्केनोज विच आर नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट सडनली व्हेन दे इरप्टेड दे कॉज अ ग्रेट लॉस टू द प्रॉपर्टी एंड द लाइफ, कि इनका हमें ये नहीं पता कि कब ये इरप्ट हो जाएंगे, बट कई सालों तक इरप्ट नहीं होते और सडनली इनमें इरप्शन हो जाता है, जिससे क्या होगा कि वहाँ की लाइफ और जो प्रॉपर्टी है उसको ज़्यादा डैमेज होगा। जैसे कि विसियुस जो वोल्केनो है इटाली का, वो 1500 ईयर्स में ओनली 10 टाइम्स इरप्ट हुआ है।
That's why it causes great loss to property and the life. Third one is the extinct volcano. Extinct volcanoes are those volcanoes which have not recorded the eruption in historic times. मीन्स बहुत टाइम से उनमें कोई इरप्शंस नहीं हुआ, इवन उनकी जो वेन है वो भी क्या हो चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, बट समटाइम्स इट कैन बी इरप्टेड. The example of this volcano can be Popa in Myanmar. When the vent blocked, the surface of the volcano, means top of the volcano is filled with the water and there appeared like a lake. Now the two more important part of the volcanoes. With the help of diagrams, we will discuss the vein. Vein or vent, we can say vent or neck. The type of और टर्म्स हम कह सकते हैं. सबसे पहली टर्म आती है इसमें वेंट. वेंट और नेक. ये कौन सा पार्ट है वोल्केनोस का? ये वो पार्ट है जहाँ से जो मटेरियल है, मैग्मा है, वो वहाँ से अर्थ के सरफेस पे आता है. हम ये कह सकते हैं कि ये जो वीक पार्ट है ये वो पार्ट है सरफेस का जहाँ से मैग्मा को ऊपर आने का टाइम मिलता है. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो या फिर फर्स्ट डायग्राम में भी आप देखो कि ये हमारा अर्थ का इंटीरियर पार्ट है. तो यहाँ से ये वेन जो है ये वीक सरफेस है जहाँ से मैग्मा जो है वो ऊपर आ जाता है, यानी वीक जॉइंट हम जिसको कह सकते हैं. तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वेंट और नेक. सेकेंड इज द कोन. कोन मीन्स कि जब हमारे वोल्केनोस इरप्ट होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऊपर के सरफेस पे आप यहाँ देख सकते हो सब में कॉनिकल शेप जो है वो बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि जब मटेरियल निकलेगा तो वो इस तरीके से नीचे भी आएगा. तो धीरे धीरे जब वो ऊपर होता जाता है तो उसकी शेप कैसी हो जाती है, दैट इज अपीयर एज कॉनिकल शेप. सो दैट पार्ट top of the volcanoes, that is known as volcanic cone. Now the third is crater. Crater is a part of the top of the volcanic eruptions. But ये क्या होता है कि ये डिप्रेशन पार्ट है. अभी हम आगे करेंगे इसका एक एग्जांपल कि कई बार जो ये टॉप है वो कॉनिकल शेप में ना होकर ये डिप्रेशन शेप में इस तरीके से फॉर्म होता है. सोसर टाइप जो है इसकी शेप बन जाती है और later on it is filled with the water and that part is known as the crater lake. तो यहाँ पर जब हम एक्सटिंक्ट वोल्केनोस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है क्रेटर फॉर्म हो जाता है और इस डिप्रेशन एरिया को लेटर ऑन जो है वाटर फिल कर देता है और ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक लेक की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम क्रेटर लेक कहते हैं. Now the main important part which we have to cover in this chapter, that is volcanic landform. जब volcanic eruptions होते हैं तो उससे different landforms जो हैं वो बनती हैं और ये landforms over the surface and under the surface दोनों ही जगह पर हमें देखने को मिलती है. So the which landforms occur on the over the surface of the earth, that is known as extrusive landforms, and which occurred inside the earth, that is known as the intrusive landforms. So volcanic landforms are all of two types, extrusive and intrusive. अर्थ सरफेस पे भी इससे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देती हैं और इनसाइड द अर्थ भी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द extrusive landforms. So extrusive landforms, different type of landforms are built by the eruption of the lava. When the first is the basic lava cone, it can be called lava shield or shield volcanoes. So shield volcanoes are those volcanoes when the magma erupted or volcanoes erupted, the material is very fluid. मटेरियल जो होता है वो बहुत ही फ्लूइड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. तो इट स्प्रेड्स इमीडिएटली. क्या होगा कि जैसे ही इरप्शन हुआ, फर्स्टली यहाँ से इरप्शन हुआ, यहाँ से ये हमारा इनसाइड पार्ट है अर्थ का, यहाँ से मैग्मा निकला, ये इसकी क्या है, वेंट है जिसको आपने नेक भी कहा. अब इस वेंट के जरिए जो है वो यहाँ से लावा निकल रहा है. तो यहाँ से लावा निकलेगा और ये फ्लूइड होने के कारण ये बहुत ज़्यादा हमारा क्या है, लिक्विड मटेरियल है और ये मेनली
कौन सा मटेरियल है ये, दैट इज बेसाल्ट. इट इज अ बेसाल्ट फ्लूइड. ये यहाँ से जैसे ही निकलेगा ये सडनली क्या हो जाएगा, उसी टाइम इमीडिएटली स्प्रेड हो जाएगा. तो ये जो है एक धीरे धीरे इसके ऊपर जो है इसकी कवरिंग यानी लेयर्स बनती जाती है और लेटर ऑन इट अपीयर्ड एज अ शील्ड. ये धीरे धीरे किसकी फॉर्म में आ जाता है, शील्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो these type of volcanoes are known as shield volcanoes, and the best example of the shield volcanoes is the Hawaii Islands. Hawaii Islands is formed as a shield volcano. Hawaii Island is in the Pacific Ocean. So it is in the form of Hawaii Island. Mainly Mauna Loa in Hawaii Island is in the form of shield volcanoes. Now the composite volcanoes. Composite volcanoes. अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, that is composite volcanoes. Here you can see there are three necks. I am displaying three necks or three vents. So यहाँ this is the main vent. ये हमारी क्या है, मेन वेंट है, जिससे क्या हो रहा है, इरप्शन हो रहा है. इरप्शन होता है लेकिन ये इतना फ्लूइड नहीं होता, ये थोड़ा सा क्या होता है, एज कंपेयर टू शील्ड वोल्केनोज दिस इज विजुअस लावास देन बेसाल्ट. यहाँ पर बेसाल्ट का है, जबकि यहाँ पर उससे थोड़ा गाढ़ा सा जो है वो लावा होता है जिसमें ऐश और डस्ट भी मिक्स होती है. तो क्या होगा कि ये जो लावा है कई बार यहीं पर से उसे रास्ता जो है उसके साथ एक मेन वेंट के साथ कुछ और वीक पॉइंट मिल जाते हैं, जहाँ से ये लावा भी जो है उन वीक पॉइंट से भी निकलना शुरू हो जाता है. यानी ये मेन वेंट है और ये हमारे सब वेंट्स हैं, सब वेंट हैं. यहाँ पर ये स्मॉल वेंट से भी इरप्ट होना शुरू हो जाता है. तो इससे क्या होगा कि इसका जो कॉनिकल पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और ये जो है वो पूरा एक माउंटेन की तरह अपीयर होता है. ये देखो ये पूरा एक माउंटेन की तरह अपीयर हो रहा है. तो दैट इज कंपोजिट वोल्केनोज विच हैव मोर देन वन वेंट. यहाँ पर एक से ज़्यादा वेंट्स हैं और उन सभी वेंट से इरप्शन हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी. तो तीनों इरप्शंस के एरियाज के कारण ये क्या हो जाता है, ये एक ब्रॉड कॉनिकल शेप ले लेता है लाइक अ माउंटेन. दैट इज कॉल्ड कंपोजिट वोल्केनोज. द थर्ड फॉर्म इज कार्डेरा. कार्डेरा इज द डिप्रेशन फॉर्म ऑफ द वोल्केनोज. यहाँ पर हमारा जो इरप्शन है वो एक फाउंटेन के फॉर्म में होता है. एकदम से जहाँ पर फ्लूइड है, वाटर को आप अगर प्रेशराइज करते हो तो जब उसको छोड़ोगे तो वो एकदम से ऊपर फुहारे के रूप में आएगा. तो यहाँ पर भी फ्लूइड मटेरियल है तो ये एकदम से किस फॉर्म में आता है, फ्लूइड के फॉर्म में आता है, यानी शावर के फॉर्म में आता है, फाउंटेन के फॉर्म में. लेकिन यहाँ पर मटेरियल कैसा है, थोड़ा कम लिक्विड है. तो यहाँ पर विशेष मटेरियल होने के कारण यहाँ पर जो इरप्शंस है वो बहुत ही क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही एक्सप्लोजिव होता है. नाउ द थर्ड टाइप इज कार्डेरा. कार्डेरा में भी जो इरप्शन है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि एक जब हम किसी हार्ड मटेरियल को दबाएंगे और वो जब हमारा निकलता है, जैसे हम बम एक्सप्लोज करते हैं उसमें जो हार्ड मटेरियल एक्सप्लोज होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है दूर तक जाता है और यहाँ पर भी क्या होता है वो बहुत एक्सप्लोजिव होगा. तो कार्डेरा में क्या होता है कि जैसे ये वेंट से मटेरियल निकल रहा है ये इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि ये अपनी ही टॉप को क्या कर देता है, उसे ब्रेक डाउन कर देता है. इट ब्रेक डाउन इट्स सरफेस, टॉप सरफेस, जो यहाँ का इसका टॉप है उसको नीचे गिरा देता है और यहाँ पर एक इस तरीके की फॉर्मेशन जो है वो हमें मिल जाती है, डिप्रेशन, सोसर शेप जो है फॉर्मेशन मिल जाती है. इस सोसर शेप फॉर्मेशन को हम यहाँ पर क्रेटर भी कहते हैं. तो यहाँ पर जो इस सोसर शेप जो हमें वॉल्केनिक इरप्शन मिलता है दैट इज नोन एज कार्डेरा. जब ये इसमें लॉन्ग टाइम इरप्शन नहीं होता और रेनफॉल होता है तो ये सोसर शेप जो है वो किससे भर जाती है, वाटर से, एंड दैट फॉर्म क्रेटर लेक. सो दीज आर द कार्डेरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज volcanic flood basalt provinces.
flood basalt provinces can be seen in the India as a Deccan Plateau. Deccan Plateau is formed by the flood basalt provinces. So next is our fourth is flood basalt provinces. जैसा कि इसके नेम से आपको पता लग रहा है, फ्लड फ्लड मीन्स किसी चीज की बाढ़ आ जाना. बाढ़ किस चीज की आती है? लिक्विड की, वाटर की. जब आपने सिंपल वर्ड्स में अगर हम फ्लड का मीनिंग लेते हैं तो वाटर जो है वो नियर बाय एरियाज में, बहुत ही वास्ट एरिया में स्प्रेड हो जाता है, तो उस चीज को हम कहते हैं फ्लड. तो इसका मतलब यहाँ पर भी फ्लड आ रही है सेम प्रोसेस में, लेकिन इसके साथ हमने कहा बेसाल्ट. तो ये फ्लड जो है वो वाटर की ना होकर किसकी है? बेसाल्ट की है. तो ये प्रोविंसेस मीन्स लार्ज एरिया. तो यहाँ पर क्या है मीनिंग कि जब बेसाल्ट बहुत ही लार्ज एरिया में फैल जाता है ड्यू टू द वॉल्केनिक इरप्शंस, दैट इज कॉल्ड फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस. इट कैन बी स्प्रेड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये जो है बेसाल्ट जो है वो हमें मिल जाता है. इसी तरीके से हमारी जो है डेक्कन प्लेटू है जो इंडिया का, उसकी फॉर्मेशन हुई है. अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें नज़र आती है कि जो हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेटू है वो महाराष्ट्रियन प्लेटू को भी कवर कर लेता है, लेकिन ये माना जाता है कि जो डेक्कन प्लेटू इनिशियल इसकी जो फॉर्मेशन थी वो इससे भी, जो प्रेजेंट डे फॉर्मेशन है उससे भी कहीं ज़्यादा एनलार्ज थी. तो यहाँ पर हमें बहुत ही फ्लूइड मटेरियल मिलता है बेसाल्ट का, दैट स्प्रेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस इवन द थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स. दैट इज कोल्ड फ्लड बेसाल्ट. की बेसाल्ट की एक फ्लड आ गई है, उसकी पूरी एक बाढ़ आ गई है. दैट इज नोन एज द फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस. नेक्स्ट इज मिड ओशनिक. मिड ओशनिक रिज दैट occurs in the oceans. ये कहाँ पर है? ओशंस में. ओशंस में हमारा जो सी फ्लोर है, सी फ्लोर पर भी हमें एक ज्वाइंट मिलता है इन ऑल द ओशंस. दैट इज कोल्ड, इट इज ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द ओशन. ओशंस के जो सेंटर में होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अपने ओशनिक जो हमारा ओशंस यूनिट है उसमें हम इसमें पढ़ेंगे. बट फॉर दिस टाइम यहाँ पर हर ओशन में हमारा क्या है? एक वीकर पॉइंट है, यानी बीच में जो है एक रिज है. रिज मीन्स माउंटेन टाइप. अब ये माउंटेन्स की फॉर्मेशन क्या हुई कि जो बीच का हमारा ओशन का सेंटर है वहाँ पर एक वीक जोन है जहाँ से फ्रीक्वेंटली क्या होता रहता है? वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है. दैट इज कॉल्ड मिड ओशनिक रिज. और ऐसी ही मिड ओशनिक रिज जो है वो सबसे लार्जेस्ट जो हमें मिड ओशनिक रिज मिलती है, दैट इज अटलांटिक मिड ओशनिक रिज. अटलांटिक ओशन की जो रिज है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द much longer or the most important oceanic ridge among all the oceans. तो मिड अटलांटिक रिज जो है वो हमारे ओशंस में ऑकर करती है. ओशंस में भी हमारा सरफेस है, उस सरफेस पर भी जहाँ पर भी वीक पॉइंट होगा तो वहाँ से क्या होगा? वॉल्केनिक इरप्शन होगा. और ओशंस में ये वीकर पॉइंट हमें सेंटर में मिलता है और धीरे धीरे इसके जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होने से ये एक माउंटेन की फॉर्म ले लेता है जिसे हम रिज कहते हैं, मिड ओशनिक रिज, बिकॉज इट ऑकर्स इन द mid or the center of the oceans. So it can be long, mostly 70,000 kilometer long. They are in all the oceans in different length, and the Atlantic Ocean have the most longest mid Atlantic Ocean ridge. Now the one more is the volcanic plug. वॉल्केनिक प्लग अभी हम वेदर के बारे में भी पढ़ेंगे. व्हाट इज वेदरिंग प्रोसेस. अब क्या होता है कि ये वेंट है आपकी, यहाँ से जो है वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा है. ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण लैंडफॉर्म बन गया.
बट क्या होता है लेटर ऑन इस पर जो हमारे वेदरिंग एजेंट है वो अपना वर्क करते हैं। वेदरिंग एजेंट वी काउंट मोस्टली इन द विंड, वाटर, ठीक है। यहाँ पर जो मेन वर्क होता है वो होता है विंड का। विंड इरोड दीज पार्ट ऑफ द मटेरियल। जो यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट हुआ ये एक रॉक के फॉर्म में हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पर वेदरिंग एजेंट अपना प्रोसेस करते हैं और इससे ये जो मटेरियल है यानी ये रॉक स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इरोड होता जाता है। ये इरोड हुआ, फिर ये पार्ट इरोड हुआ, यहाँ से भी इरोड हो गया, ये भी और ये भी। तो लास्ट में सिर्फ जो हमें क्या दिखाई देता है, एक पिलर टाइप फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है वेंट की, दैट इज नोन एज वोल्केनिक प्लग। ये हमें बहुत से जो है ड्राई एरियाज में हमें दिखाई देता है वोल्केनिक प्लग्स। डेविल टावर जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय द इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनिक प्लग। तो यहाँ पर जो है हमारे वोल्केनिक नेक जो है वो हमें अपीयर होता है आफ्टर द वेदरिंग प्रोसेस ऑफ द रॉक्स, दैट इज नोन एज वोल्केनिक प्लग। अब यहाँ पर आपकी ये जो थी ये सारी थी कि एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स। Now we will discuss about the intrusive forms of the landforms. Intrusive forms of the landforms are those landforms which are occurred inside the earth, जो अर्थ के अंदर बनती है। अब ये तो आप कहोगे कि वोल्केनिक इरप्शन तो बाहर होता है, कि बाहर जो है लावा आता है और इरप्ट होता है, इसको हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो इंट्रूसिव फॉर्म कैसे ओकर होंगी? समटाइम्स क्या होता है कि वोल्केनोज जो है इरप्ट होता है, यानी मैग्मा जो है वो अपने वेंट से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन सडनली जो ऊपर का कहीं चीज़ें हैं जैसे कि प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर एकदम से कूल डाउन हो गया या ऊपर का जो पार्ट है वो रिजिड हो गया और उसको पूरी तरह से बाहर आने के लिए जो है टाइम नहीं मिला। तो इट मीन्स वो मैग्मा चैम्बर, अगर हम मान लें कि ये हमारा मैग्मा चैम्बर है जहाँ पर मैग्मा है, ये सारा पार्ट जो है वो मैग्मा चैम्बर का है जहाँ पर मैग्मा ओकर करता है। अब यहाँ से इसको वेंट तो मिल गई, ये यहाँ से बाहर आना तो शुरू हो गया, लेकिन सडनली यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, कोई रिजिड रॉक आ गई, टेम्परेचर एकदम से सडनली डाउन हो गया और मैग्मा जो है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं निकल पाया। तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ से तो वो निकल गया, तो इस पार्ट के बीच में ही वो क्या हो जाएगा, यहीं पर स्प्रेड हो जाएगा, यहीं पर वो जो है वो कूल डाउन होकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो है वो उस टाइम बनती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। नाउ द मेन इज इन अमंग दैम, इंट्रूसिव में सबसे पहले आती है हमारी बैथोलिट, बैथोलिट जैसे कि अभी आपने बेसाल्ट प्रोविंसेस किया था, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस, कि 1000 ऑफ किलोमीटर तक बेसाल्ट का एक फ्लड आ जाता है और वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो एक प्लेटो के फॉर्म में हमें नजर आता है, दैट इज फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। अगर इसी तरीके का लैंड फॉर्म्स अंदर इनसाइड द अर्थ हमारा फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड बैथोलिट। मीन्स कि दैट इज इट इज यूजुअली hundreds of kilometer long and 50 to 80 kilometer wide, hundreds of kilometer long and width is 50 to 80 kilometer। तो सडनली जैसे कि हम एक ही डायग्राम से सारे लैंडफॉर्म्स को इसमें कवर कर सकते हैं इंट्रूसिव में। सो सपोज यहाँ पर इस तरीके का एक पूरा लार्ज पार्ट जो है वो लावा से कवर हो जाता है, तो ये पूरा पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, बैथोलिट। इनसाइड द अर्थ की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, बैथोलिट। अब बैथोलिट जो है अगर इसी फॉर्म में हमें जो है स्टॉक, सेकंड जो है दैट इज स्टॉक, फर्स्ट इज बैथोलिट, सेकंड इज स्टॉक। अगर यही फॉर्मेशन जो है वो हमें स्मॉल साइज में मिल जाती है, जिसका डायमीटर जो है, साइज जो है वो कम हो जाता है, इट इज लेस देन 100 किलोमीटर। यहाँ पर 100 ऑफ किलोमीटर्स की बात की थी और यहाँ पर हम कह रहे हैं इट इज लेस देन 100 किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर।
तो अगर कोई ऐसी फॉर्म जो 100 स्क्वायर किलोमीटर से कम के एरिया में जो डिपॉजिट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक. दैट इज द स्टॉक फॉर्मेशन. नाउ द थर्ड इज लैकोलिथ. आई एम रबिंग दिस, यू कैन नोट डाउन. थर्ड इज लैकोलिथ. Now what is laccolith? Laccolith is a dome shaped. When the magma deposit inside the earth in dome shape, ऊपर से डोम शेप, जैसे गुंबद जिसे हम कहते हैं, जैसे हमारे मंदिरों के मस्जिदों के ऊपर होता है कि ऊपर से इस तरीके से फॉर्मेशन, इस तरीके की फॉर्मेशन को हम डोम शेप कहते हैं. तो यहाँ पर जब मैग्मा जो है दैट डिपॉजिट इन द डोम शेप, दैट इज नोन एज लैकोलिथ. उस फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, लैकोलिथ. नेक्स्ट इज अ लैपोलिथ. द नेम डिफर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द लावा और डेपोजिशन फॉर्मेशन ऑफ द लावा. जिस फॉर्म में लावा डिपॉजिट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे जो है डिफरेंट नेम्स देते हैं. लैपोलिथ इज अ सोसर शेप्ड लाइन, मीन्स इफ फ्रॉम द टॉप इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन जैसे कि नीचे की ओर हुआ है और ये इस तरीके से जो फॉर्मेशन होगी दैट इज लैपोलिथ. नेक्स्ट इज फैकोलिथ, दैट इज 4 एंड फिफ्थ वन इज फैकोलिथ. फैकोलिथ मीन्स जब मैग्मा जो है एकदम से बाहर निकल रहा है और वो वेव शेप में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो ये वेव लाइक शेप है जिसको हम क्या कहते हैं, फैकोलिथ. व्हेन द मैग्मा डिपॉजिट इन द वेव शेप, दैट इज नोन एज फैकोलिथ. नाउ द नेक्स्ट इज सिल. सिक्स्थ वन इज सिल. When the magma deposit in the very thin form or the sheet form, तो इसे हम क्या कहेंगे, जब एक शीट के फॉर्म में मैग्मा जो है वो डिपॉजिट होता है, दैट इज सिल. अब सिल का ही एक फॉर्म है शीट. दैट वेरीज, बोथ फॉर्मेशन आर द सेम बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस. जो सिल की थिकनेस है वो हमारी ज़्यादा होती है. इट कैन बी मोर देन 1 मीटर टू 100 मीटर. इसकी थिकनेस कितनी हो सकती है, 1 to 100 मीटर तक इसकी थिकनेस होती है सिल की. बट लेस देन 1 मीटर थिकनेस, अगर किसी की लेस देन 1 मीटर थिकनेस है, 1 मीटर थिकनेस से कम में हमारा जो मैग्मा डिपॉजिट हो रहा है, तो दैट इज नोन एज शीट. इसे हम क्या कहेंगे, शीट. अब नेक्स्ट इज द डाइक. डाइक इज द फॉर्म ऑफ लाइक, हमने अभी लास्ट किया था एक्सक्लूसिव में कि हमने इसमें क्या था, वॉल्केनिक प्लग. वॉल्केनिक प्लग में जो साइड का जो फॉर्मेशन है वो हमारा जितनी भी हमारी रॉक्स फॉर्म हुई थी दैट वर इरोडेड एंड द नेक वर अपीयरिंग. सो डाइक इज सिमिलर टू द volcanic plug. It is when the magma deposit in its wing. अब क्या होता है कि मैग्मा को उसके चैम्बर से तो वो निकल गया लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता, बाहर के सरफेस में नहीं जा पाता और वो अपने ही नेक में कूल डाउन होकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. सो इट appears like a pillar and that is known as the dike. So these are the different landforms which are formed during the volcanic eruptions. Intrusive forms in which we covered batholith, stalk, laccolith, lapolith, feccolith, sill, sheet and dike. And here you can see the vast formation of the basalt that is inside the earth, that is known as batholith. The short formation of the basalt is known as stalk, less than 100 kilometer. Dome shaped formation is called laccolith. Saucer shaped formed is known as lapolith. Wave shaped formation is known as feccolith, and sheet formation, equal formation we can say is known as sill, which can be between 1 to 100 kilometer.
the thickness, where the thickness of the seal is less than 1 kilometer, 1 meter, that is known as sheet. And when the magma deposited in its vein, that is known as dike. So students, here we completed our third chapter, interior forms, interior of the earth, in which we covered all the direct and indirect sources, as well as seismic waves, types of seismic waves, and how it is important to understand about the interior of the earth, and the most important, the volcanic landforms and volcanic eruptions. So we will discuss, we will start the next chapter in our next lecture. Have a nice day.